Good morning students. Today I am going to start chapter 8, problem of deficit demand and excess demand. Okay student, so in this chapter we are discussed some essential concepts: full employment equilibrium and underemployment equilibrium, voluntary and involuntary unemployment, full employment and natural unemployment, problem of deficient demand, problem of excess demand, and measures to correct deficient and excess demand. Okay, so now let's start some essential concepts. So knowledge of some concept is essential before we take up a detailed description of the problem of deficient demand and excess demand. So students, in this chapter we discussed the deficient demand and excess demand of the problem. Okay, so these concepts are: first, full employment and underemployment equilibrium, and second, voluntary and involuntary unemployment, and third, full employment and natural unemployment. So we can start the first topic: full employment equilibrium and underemployment equilibrium. So equilibrium is struck when aggregate demand is equal aggregate supply. This topic we are discussed already in the previous chapters. So the equilibrium is struck when aggregate demand is equal aggregate supply, or when S is equal I. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या उसको हम कह सकते हैं तब saving and investment are equal, but it need not necessarily corresponds to the situation of full employment when resources are fully utilized. यहाँ पर देखेंगे किंतु हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? कोरिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के डिस्कस करेंगे. व्हेन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, देन आवर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, मतलब हमारा जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है इन द इकोनॉमी. कहाँ पर? इकोनॉमी के अंदर. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मे बी इक्वल इवन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज. जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में भी इक्वल व्हेन इवन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, आर या फिर व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल के रूप में तभी डिस्कस कर पाएंगे इस चैप्टर के अंदर जब हमारा जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से यूटिलाइज ना हो रहा हो, या कह सकते हैं तब जब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो. ओके, हियर इज एन इलस्ट्रेशन. अब यहाँ पर हम समझेंगे. लेट अस एज्यूम दैट fuller utilization of the resources leads to output worth 10 billion US dollar during an accounting year. अगर हम अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं तो आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 बिलियन US डॉलर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो है US डॉलर 10 बिलियन के है. बट द प्रोड्यूसर्स में प्लान आउटपुट एंड हाउस होल्ड में प्लान एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट वर्थ 8 बिलियन. लेकिन यहाँ पर 8 बिलियन US डॉलर्स ओनली. सो प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स आर प्लान total output 8 billion US dollar, but we can use our resources fuller utilization of the resources, so total output 10 billion US dollar. So resources worth 2 billion US dollar of output remain unutilized. तो यहाँ पर जो 2 बिलियन डॉलर है वो क्या हो जा रहा है? यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, वो बच जा रहा है. बट द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक सिंपली बिकॉज planned output, that means aggregate supply, and planned expenditure on output, aggregate demand, are equal to 8 बिलियन US डॉलर. तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? 8 बिलियन US डॉलर के इक्वल्स हो गए. So thus we can think of two possible situation of equilibrium.
first full employment equilibrium and second under employment equilibrium. Okay, now the full employment equilibrium and under employment equilibrium. Full employment equilibrium is struck when plant aggregate supply is equal plant aggregate supply is equal plant aggregate डिमांड अलॉन्ग विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा प्लांट एग्रीगेट सप्लाई है और प्लांट एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइज करेगा। विथ रेफरेंस टू द above illustration, full employment equilibrium is struck when plant aggregate supply is equal plant aggregate demand is equal 10 बिलियन US डॉलर। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात करेंगे तो हमारा जो प्लांट एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड होगा वो कितने के बराबर होगा, 10 बिलियन US डॉलर्स के इक्वल्स होंगे। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में कब होगा, संतुलन की स्थिति में कब होगा, व्हेन प्लांट एग्रीगेट सप्लाई is equal plant aggregate demand but resources are still not fully utilized। अंडर एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक कब होगा, when plant aggregate supply and plant aggregate demand but resources are still not fully utilized। मतलब दोनों तो इक्वल होंगे बट रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज नहीं होगा। सो दैट देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, कैपेसिटी जो है वो एक्सेस हो जा रहा है क्योंकि 10 बिलियन US डॉलर्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो 8 बिलियन US डॉलर हो रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो कितने के बराबर हो गया, 2 बिलियन US डॉलर्स जो है एक्सेस हो रहा है। विथ रेफरेंस टू द अबव इलस्ट्रेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन प्लांट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल 8 बिलियन US डॉलर। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम जो होगा वो किसके बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई, प्लांट एग्रीगेट सप्लाई एंड प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल 8 बिलियन US डॉलर। बट द फुल एम्प्लॉयमेंट वी आर यूज्ड, आवर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। तो प्लांट एग्रीगेट सप्लाई एंड प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 10 बिलियन US dollars। Okay, so now the next question, what is the full employment equilibrium? The full employment equilibrium refers to that situation in the economy when aggregate supply is equal aggregate demand, या उसी को हम कह सकते हैं S is equal I, along with fuller utilization of resources so that there is no excess capacity or unemployment in the इकोनॉमी। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि इकोनॉमी के अंदर ऐसा सिचुएशन जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल होंगे अलॉन्ग विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसके साथ, जब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज हम कर रहे हैं। सो दैट इसलिए देयर इज़ अ नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, ऐसा सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड और एस इज इक्वल आई बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द डिफरेंस in the both topics, the fuller employment equilibrium and under employment equilibrium? That is the aggregate supply and aggregate demand, and in this topic aggregate supply and aggregate demand are same, but this point fuller utilization of the resources but without fuller utilization of resources. Accordingly there is a unutilized capacity or excess capacity or unemployment in the इकोनॉमी इवन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब संतुलन की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे होगा, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में नो एक्सेस कैपेसिटी बट इन द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट
topic, second topic, voluntary and involuntary unemployment. What is the voluntary employment and involuntary employment? The voluntary employment refers to a situation when people choose to remain unemployed. यहाँ पर ऐसा स्थिति आता है कि जब लोग जो है अनएम्प्लॉयड को चॉइस करते हैं, इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल. कब? जब जॉब्स अवेलेबल है बट पीपल दे आर नॉट रेडी टू फॉर जॉब. दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. मतलब वे लोग जो कि काम करना नहीं चाहते और जो कि जॉब्स आर अवेलेबल बट दे आर नॉट वर्किंग एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. जो न्यूनतम मजदूरी की दर होती है उस पर वो काम करना नहीं चाहता. दैट इज़ द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट occurs when some people are not willing to work at all, are not willing to work at the existing wage rate. Okay, so what is the voluntary unemployment? Voluntary unemployment, that peoples they are not willing to work at all and not willing to work at the existing wage rate. That is the voluntary unemployment. Now the next topic, involuntary unemployment. Involuntary unemployment refers to the situation when some people are not getting work, even when they are willing to work. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि कुछ लोग जो कि काम करना चाहते हैं बट इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क, बट उनको काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो न्यूनतम मजदूरी की दर होती है उस पर भी काम करने के लिए दे आर रेडी बट नॉट getting the work. Okay, so that is the involuntary unemployment. It is a situation when aggregate demand is not enough to induce fuller utilization of the existing resources. तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट इनफ. जो एग्रीगेट डिमांड है वो पर्याप्त नहीं है किसके लिए? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है. अकॉर्डिंगली प्लांट आउटपुट इज़ लोअर दैन द पोटेंशियल आउटपुट. जो प्लांट आउटपुट जो रहेगा वो नीचे रहेगा किसके? पोटेंशियल आउटपुट के. दैट मीन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के. सो देयर इज़ अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पर जो इकोनॉमी में क्या होगा? कैपेसिटी जो होगी वो एक्सेस होगी. एंड सम पीपल आर फोर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट. और कुछ लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे किसके थ्रू? फोर्स के थ्रू. ओके, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. समस्या जो बेरोजगारी का है वो किसको रिफर्स करता है? प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को. नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क. यदि सभी लोग जो है काम करना चाहते हैं एंड एबल टू वर्क, जो काम करने के योग्य हैं और काम करना चाहते हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो कि न्यूनतम मजदूरी की दर है उस पर, आर गेटिंग वर्क, द इकोनॉमी वुड बी डीम्ड to be in a state of full employment even when there is a voluntary unemployment in the economy. Okay student, so that means कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बट क्या है वो? नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, अब इकोनॉमी के अंदर उनको चाहिए क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट. कब? इवन व्हेन देयर इज़ अ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. जब इकोनॉमी के अंदर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब. अब यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क. कुछ लोग जो हैं वो काम
काम नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जब वो काम करने के इच्छुक हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, बट उनको दे आर नॉट गेटिंग टू वर्क। द इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब्स बिकॉज अ प्लान्ड आउटपुट इज़ लोअर दैन द पोटेंशियल आउटपुट। क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाएगा, कब, क्रिएट इनफ जॉब्स, क्योंकि पर्याप्त जॉब नहीं है, बिकॉज प्लान्ड आउटपुट इज़ लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। जो पोटेंशियल आउटपुट है, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, उससे प्लान जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। सो दैट इज़ ओविंग टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। Full employment refers to a situation when all those who are able to work and are willing to work at the existing wage rate। यहाँ पर full employment का मतलब होता है ऐसी स्थिति when all those who are able to work, सभी काम करने के योग्य हैं, and are willing to work, और सभी काम करना चाहते हैं, किस पर, at the existing wage rate, जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उस पर, are getting to work. It is a situation when corresponding to a given wage rate. Okay, तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के योग्य हैं और उनको जो काम मिलता है, और वही क्या कहलाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल सप्लाई ऑफ लेबर, जितने का डिमांड रहेगा लेबर का, उतने ही के बराबर क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर। तो लेबर का सप्लाई होगा। सो दैट इज़ द रीज़न, एंड द लेबर मार्केट इज़ क्लियर, इट इज़ इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ जहाँ पर लेबर जो होगा वो इक्वल होगा, डिमांड के इक्वल सप्लाई होगा, तो वहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल डिमांड ऑफ लेबर कोरिस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट, so that labor market is clear and it is in a state of equilibrium, that is the full employment. Okay students, now the next topic, situation of full employment does not mean a situation of zero involuntary unemployment. Okay, so situation of full employment does not mean a situation of zero unemployment, involuntary unemployment. That means student of economic must carefully note that in the economy, जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो ध्यानपूर्वक इकोनॉमी के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज अ सिचुएशन ऑफ जीरो। इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो जीरो रहेगा। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा क्या होता है, कुछ न कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है, और इसी को कहा जाता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को केयरफुली ध्यान से समझेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इकोनॉमी के अंदर कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, कुछ न कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दिस ऑकर्स ओविंग टू द फैक्ट दैट देयर आर constant changes in the supply demand parameter in the economy। तो यहाँ पर जो फैक्ट निकल करके आता है, जो हमेशा क्या रहता है, देयर आर कांस्टेंट चेंज इन द सप्लाई डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई में जो थोड़ा बहुत चेंज होता है इकोनॉमी के अंदर, उसी को क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। एंड एडजस्टमेंट टू दिस चेंजेस टेक्स टाइम, और समय देख करके उसको एडजस्ट किया जाता है। वाइल एडजस्टमेंट आर ऑक्योरिंग सम पीपल कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी की वजह से कुछ लोग जो है वो कंटिन्यू लगातार जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बने रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। दिस इज़ ए सिचुएशन ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। Okay, now full employment does not mean a situation of zero unemployment.
फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ओविंग टू कंस्टेंटली चेंजिंग सप्लाई डिमांड पैरामीटर इन द इकोनॉमी, क्या होता है कि जो सप्लाई और डिमांड होता है उसके पैरामीटर्स में चेंज होते रहता है इकोनॉमी के अंदर। एंड द फैक्ट दैट एडजस्टमेंट टू दिस चेंजेस टेक्स टाइम, और जो उसको एडजस्ट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है, दे आर ऑलवेज एक्सिस्ट सम फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी के वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है वो हमेशा बना रहता है इकोनॉमी के अंदर, और उसी को क्या कहा जाएगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट फ्रिक्शनल unemployment and structural unemployment we are discussed in the next video. Okay students.